Myself, Dr. Rakesh Kumar, Department of Sociology, SKJ Law College, Muzaffarpur, Bihar. Good morning, all of you. Today, again, I will take class of Pre-Law Part 1. The topic of today is marriage. In that topic, previously we have already discussed about the types of marriage among Hindu community on the basis of their rituals. Today, then we have already discussed about the aims of the marriage. And today we will discuss about one question which is very important for your coming examination. The question is, how Hindu marriage is a sacred sacrament. हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है, इसकी व्याख्या करें. All of we are knowing that our Hindu marriage is fully based on our religion. So Hindu marriage is a religious function. In this there is many sacrament, but in Muslim and Christian community the marriage is recognized as a social contract by their society members. But in Hindu, marriage is a pure sacrament. The causes of this, that in Hindu marriage, religion have great importance. Hindu marriage is based on religious aims. That's why we say that Hindu marriage is a sacrament. हम लोग जानते हैं कि हिंदू विवाह बिल्कुल धर्म पर आधारित है और इसमें धर्म की काफ़ी महत्ता दी जाती है. बिना धार्मिक संस्कार किए हुए विवाह संपन्न नहीं होता है, ऐसे हिंदू धर्म में विवाह की मान्यता है. लेकिन जब हम मुस्लिम समुदाय, क्रिश्चियन समुदाय की बात करते हैं तो उनमें विवाह जो है समाज के द्वारा एक सामाजिक समझौता माना गया है और उसी के तहत उनमें विवाह संपन्न होता है. But in Hindu, the religion have great importance. If we will not do any type of the sacrament, then the marriage among Hindu is not going to recognize as a marriage. So there is few steps known as the sacrament. On the basis of that, Hindu marriage will recognize as a marriage. First one, the Hindu marriage is based on religion. हिंदू विवाह जो है धर्म पर आधारित है. Second one, Hindu marriage is done on different religious method. हिंदू विवाह जो है विभिन्न धार्मिक विधियों के द्वारा किया जाता है. Then auspicious time is fixed by the both side family, bride and groom. Then gift of the girl is given by the girl's father and their relatives. Then after we arrange Yagvedi. After that we started doing the Panigrahan Sanskar. After Panigrahan Sanskar, we will arrange Ashwarohan sacrament. Then after Lajahom sacrament. Then Agni Parinat sacrament. And at last Saptapadi sacrament. When we will do this type of the sacrament in our Hindu, then marriage will be recognized as a marriage. Otherwise, it is not going to recognize as a marriage. We will discuss one by one. First, how base of marriage is religion in Hindu community. In that, there is so many causes of the Hindu marriage on the basis of which we are going to recognize Hindu marriage is a sacrament. Hindu marriage have some religious aims. In Hindu marriage, religion have upper position.
and sexual satisfaction is recognized at the lower strata of the society. Fulfillment of sexual satisfaction is for the production of the children and maintenance of the children. This is the aim of the Hindu marriage. When we are not going to arrange this marriage for production and maintenance of the children, then and not for the only sexual satisfaction, then the marriage of Hindu is not recognized as a marriage. यानी कहने का मतलब यह है कि हिंदू धर्म में विवाह का उद्देश्य धर्म पर आधारित होता है और हिंदू धर्म में धर्म को ऊपर का स्थान दिया गया है और यौन संतुष्टिकरण को निम्न स्थान दिया गया है। यौन संतुष्टिकरण बच्चों के उत्पादन और उसकी लालन पालन, ठीक ढंग से लालन पालन के लिए किया जाता है, यह उसका हिंदू विवाह का उद्देश्य होता है। देन हिंदू मैरिज विल रिकॉग्नाइज एज ए सेक्रेड सैक्रामेंट। नाउ सेकेंड पॉइंट, हिंदू मैरिज इज डन इन डिफरेंट रिलीजियस मेथड। हिंदू विवाह जो है विभिन्न धार्मिक विधियों के द्वारा संपन्न किया जाता है। ये इसमें एक विधि नहीं है जिसको कर लें और हमारा विवाह संपन्न हो गया। कहने का मतलब हिंदू मैरिज इज नॉट डन इन कोर्ट। फॉर हिंदू मैरिज वी हैव टू डू मेनी सैक्रामेंट आफ्टर मेनी रिलीजियस एक्टिविटीज और द सेरेमनी एंड मेथड we done our Hindu marriage. That's why we call Hindu marriage is a sacred sacrament. So for Hindu marriage we have to do so many religious method. यानी कि इस हिंदू विवाह में विभिन्न धार्मिक विधियों को संपन्न करना पड़ता है और एक भी विधि के संपन्न न होने से हिंदू विवाह जो है संपन्न नहीं माना जाता है। और इसमें जो भी हिंदू विवाह है यह विभिन्न संस्कारों से भरा पड़ा है, इसलिए इसमें हिंदू विवाह की विधियों का होना पूर्ण रूपेण होना अनिवार्य होता है। नाउ आफ्टर दैट द गर्ल्स एंड बॉयज फादर यानी ब्राइड ग्रूम फादर और द फैमिली डिसाइड डेट ऑफ मैरिज ऑन द बेसिस ऑफ द डेट ऑफ बर्थ ऑफ bride and groom, girls and boys. With the help of their family pandit, they decide auspicious date or time for the marriage. And in this auspicious date, both side family have to decide the date after going through the consult with the pandit. When they will decide the date of marriage, in that decide of the date, pandit, the base of the pandit decision is date of birth of both bride and groom. यानी इस शुभ मुहूर्त के दिन को सुनिश्चित करने में लड़की और लड़का दोनों के जन्म तिथि को ध्यान में रखा जाता है और दोनों के जन्म तिथि को ध्यान में रखते हुए पंडित जो इसके जानकार होते हैं उनके द्वारा शुभ दिन सुनिश्चित किया जाता है और उस दिन पर जो है शादी संपन्न करने की योजना बनाई जाती है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज आफ्टर auspicious date, a groom father used to go to the house of
गर्ल्स फादर यानी ब्राइड फादर with their friends and relatives, which is known as a bridegroom party. And after going to going to the house of girl's father, the marriage procedure will start. इसमें क्या करते हैं? शुभ मुहूर्त निकल जाने के बाद उस शुभ दिन को लड़के के पिता यानी कि दूल्हे के पिता अपने यार दोस्तों और संबंधियों के साथ लड़की के पिता के घर पर विवाह संपन्न करने के लिए बारात लेकर जाते हैं और उसके बाद वहाँ विवाह की विधियों की शुरुआत होती है. And then after, when this ceremony was celebrated, then the gift of girl is given to the groom or the groom family. इस संस्कार के करने के बाद the gift of girl in Hindu marriage is important sacrament. हिंदू धर्म में कन्यादान जो है एक महत्वपूर्ण संस्कार के रूप में जाना जाता है. There is belief that gift of girl will give us salvation. यानी कि उसमें ऐसा मानना है, ऐसा सोचना है कि कन्यादान जो है वो मोक्ष प्राप्ति का एक प्रमुख साधन है. कन्यादान कर देने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा मानना है हिंदू धर्म के अनुसार. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रेट गिफ्ट इन हिंदू सोसाइटी. हमारे हिंदू समाज में कन्यादान को महादान के रूप में माना जाता है धर्मशास्त्र के अनुसार. और इस कार्य को संपन्न करने के लिए सभी लोग लालायित रहते हैं क्योंकि यह एक मोक्ष प्राप्ति का एक जो है तरीका होता है. देन आफ्टर वी अरेंज यज्ञ वेदी and after arrangement of yajna vedi both bride and groom sit in front of the yajna vedi. Both bride and groom promise with each other in the presence of yajna vedi that we will live our life peacefully and permanently whole life. यानी कि यज्ञ वेदी की व्यवस्था कर उस यज्ञ वेदी के सामने दुल्हा दुल्हन बैठते हैं और दोनों उनको साक्ष्य मानकर आजीवन शांतिपूर्ण ढंग से वैवाहिक जीवन जीने की प्रतिज्ञा करते हैं. देन आफ्टर द अश्वारोहण सेरेमनी विल स्टार्टेड. अश्वारोहण ceremony is a one type of the sanskar in Hindu marriage. When we are going to celebrate Hindu marriage, then we have to go through the Ashwarohan sanskar. Before that, we have to do Pani Grahan sanskar. Before that, before Ashwarohan sanskar, we have to do Pani Grahan sanskar. In this sacrament, what we have to do? In this sacrament, both bride and groom cord their hand and promise with each other with pronunciation of mantra that after this process they promise to live with each other whole life. इसमें पानी ग्रहण संस्कार में क्या होता है? लड़का लड़की दोनों एक दूसरे के हाथ में अपना हाथ रखते हैं और यज्ञ वेदी के सामने बैठकर आजीवन एक दूसरे के वैवाहिक बंधन में बंधे रहने की हृदय से
प्रार्थना करते हैं, प्रॉमिस करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, और इसी को पानी ग्रहण संस्कार कहा जाता है। नाउ अश्वारोहण संस्कार सेरेमनी। अश्वारोहण ceremony is a that type of ceremony in which the bride brother put leg of bride on the stone and groom told their coming wife to be strong like a stone because marriage is a permanent bond। यानी कि इस संस्कार में लड़की का भाई लड़की के पैर को पत्थर पर रखने के लिए कहता है, और पति होने वाली पत्नी से उस पत्थर की तरह दृढ़ होने के लिए कहता है। किस बात के लिए दृढ़? यानी वैवाहिक जीवन को दृढ़तापूर्ण निभाने की बात करता है। यानी कि जिस तरह वह पत्थर कठोर होता है, उसी तरह हम दोनों इस वैवाहिक बंधन को उतना ही कठोर, जो टूटने से न टूटे, किसी प्रकार की भी समस्याएं, कितनी भी समस्याएं, हम इस वैवाहिक बंधन को न तोड़ें, इस तरह की प्रतिज्ञा करते हैं, और इसी को अश्वारोहण संस्कार कहा जाता है। देन आफ्टर वी विल अरेंज लज्जा होम सेरेमनी। लज्जा होम सेरेमनी is one kind of ceremony which is done in our Hindu marriage, and it is a result of one paddy। जो पैडी होते हैं, धान होते हैं, उनका लावा जो है छीटा जाता है। And in this sacrament, bride put lava of paddy in fire surroundings the mandap, and the brother of the bride is putting that paddy lava, and they are moving around the mandap and promise both of them for their longevity। यानी कि यह संस्कार जो है वह ब्राइड और ग्रूम दोनों के द्वारा किया जाता है, और इसमें लड़की के भाई धान का लावा सूप में डालते हैं, और मंडप जो मड़वा होता है उसके चारों तरफ घूमते हुए दोनों के दीर्घायु होने की प्रार्थना करते हैं, और वहाँ यज्ञवेदी की भी उपस्थिति होती है। देन आफ्टर वी विल गो थ्रू द अग्नि परिणत संस्कार, जिसको हिंदी में अग्नि परिणत संस्कार कहा जाता है, अग्नि परिणत sacrament। In this sacrament of marriage, bride and groom both take round of the Yajna and promise there for their happy marriage life। इसमें अग्नि परिणत संस्कार में अपने शब्दों से स्पष्ट होता है कि इस संस्कार में जो है लड़का और लड़की दोनों यज्ञ वेदी के चारों तरफ घूमते हैं, और घूमने के बाद दोनों एक दूसरे के से यज्ञ वेदी को साक्षी मानकर आजीवन खुशहाल वैवाहिक जीवन में बंधे रहने की कल्पना और प्रतिज्ञा करते हैं मंत्रोच्चारण के साथ। यानी कि जो भी संस्कार है हिंदू धर्म में, वह मंत्रोच्चारण के साथ होता है। पंडित मंत्र पढ़ते हैं और पीछे से दोनों को इस मंत्र का उच्चारण करना पड़ता है, और उस मंत्र में इन सब बातों की जो है उल्लेख छिपा हुआ रहता है। नाउ सप्तपदी संस्कार, यानी कि सप्तपदी सैक्रामेंट। इन दिस सैक्रामेंट ऑफ मैरिज, groom told bride, यानी टू प्रॉमिस what they told their bride for promise, that
they will do all purified work whole life. यानी कि तुम अपने पूरे जीवन में, वैवाहिक जीवन में सभी पवित्र कार्य करोगे. In this period, both of them bond with each other by the knot of साड़ी एंड धोती, कभी कभी दुपट्टा, यह शब्दपदी संस्कार हुआ होता है. एंड दे विल टेक 7 राउंड्स ऑफ द अग्निवेदी. देन द होल मैरिज प्रोसेस ऑफ द हिंदू विल बी एंड, एंड दिस इज द लास्ट मेथड, रिलीजियस मेथड ऑफ द हिंदू मैरिज. इसमें क्या करते हैं, लड़के और लड़कियां, दुल्हा और दुल्हन यज्ञ वेदी के चारों तरफ 7 फेरे लगाते हैं. इसमें लड़के का धोती और लड़की के जो दुपट्टे होते हैं एक दूसरे में गांठ बंधे होते हैं, और दोनों आग को, यज्ञ वेदी को साक्षी मानते हुए दोनों एक दूसरे के उसके चारों तरफ 7 फेरे लगाते हैं और आजीवन खुशहाल वैवाहिक जीवन बिताने की प्रतिज्ञा करते हैं. और कभी इस बंधन को, वैवाहिक बंधन को न टूटे, हृदय से इस बात की भी प्रतिज्ञा करते हैं. इसलिए यह विवाह जो है, हिंदू विवाह, क्या कहा गया है, परमानेंट बॉन्ड कहा गया, स्थायी बंधन है. और मुस्लिम एंड क्रिश्चियन मैरिज इज ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट दैट विल बी डाइवोर्स एट एनी टाइम. बट in Hindu marriage, according to the tradition of Hindu society, there is no any क्वेश्चन ऑफ डाइवोर्स. डाइवोर्स की व्यवस्था, डाइवोर्स का प्रश्न ही नहीं उठता है. जब when we will do all these said or the taught ceremony, then Hindu marriage will be end, and the Hindu marriage will be recognized as a sacred sacrament. Because in all steps of the Hindu marriage, there is some religious sacrament. So that's why we call Hindu marriage is a sacred sacrament. But in Muslim or Christian community, it is a social contract. That contract is first done by their family, and then at the time of the nikah, both bride and groom will accept that nikah. Then in the presence of both side family, that nikah will end and they will live a marriage life. इसलिए मुस्लिम विवाह में क्या है, दोनों लड़के लड़की के पक्ष के सगे संबंधी बारात लेकर आते हैं, और विवाह के समय, निकाह के समय पहले दोनों परिवार की स्वीकृति हो जाती है, तब आते हैं. और निकाह के समय लड़के और लड़कियों से, दोनों से निकाह कबूल है कि नहीं, ये बात दोनों से पूछा जाता है. अगर दोनों की स्वीकृति हाँ में होती है तो वह निकाह जो है मान्य हो जाता है, और दोनों उसके बाद वैवाहिक जीवन जीने के लिए सामाजिक स्वीकृति मिल जाती है. किसी एक पक्ष के ना कह देने पर निकाह वहीं का वहीं रुक जाता है, और लड़के पक्ष लौट कर चले जाते हैं. बाद में अपने मुस्लिम समाज के बीच में बैठकर दूसरा निर्णय किया जाता है कि उनके विवाह में दोनों का समझौता, सामाजिक समझौता को ही आधार माना गया है. इसलिए कहा जाता है कि हिंदू मैरिज इज ए सेक्रेड सेक्रामेंट एंड मुस्लिम मैरिज इज ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट. दिस वे आई हैव गिवन आंसर ऑफ
how Hindu marriage is a sacred sacrament and Muslim marriage is a social contract. मैंने 2 प्रश्न का उत्तर दे दिया. हाउ हिंदू मैरिज इज ए सेक्रेड सेक्रामेंट एंड सेकेंड हाउ हिंदू मैरिज इज ए सेक्रेड सेक्रामेंट एंड मुस्लिम मैरिज इज ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट. आई हैव गिवन आंसर ऑफ these 2 questions, and these 2 questions is very important for pre-law part 1 students in their examination. Thank you all of you for today. If you have any type of problem regarding this question, you ask me anytime with the help of your electronic goods. Thank you all of you.